Hello guys, my name is Harsh Gadvi and I welcome you all on the YouTube platform of DICS, where today we are going to discuss a very particular and an important issue, that is on geopolitics. People woke up to this when the headline something like, "You'll be gone," says Nancy Pelosi, and Miss Pelosi says certain words to the president of China. She is under the belief that you will be gone, Mr. Jinping, you will be gone. And when the US, Nancy Pelosi says something, it means the US lawmaker are damn serious about this. And at this point of time, these lawmakers, they are in India. And if India is the center of the attraction, then definitely that point is important for us when it comes to the civil service, because international relation and internal security both are the subject of very keen importance when it comes to UPSC. But you see, US जब किसी के पीछे पड़ता है कैसे, you would observe a date, June 19th June, Miss Pelosi happened to meet Dalai Lama, and that too at Dharamshala. उसके बाद the same day, June 19th, our external affair minister Jai Shankar held a nice dinner with all US lawmakers who are there in Dharamshala. These people are there in India. कर क्या रहे ये लोग? Why they want to meet Dalai Lama, and why as Jai Shankar is having a dinner with them? बात वही यहाँ पे यही है कि US जब किसी के पीछे पड़ता है तो ऐसे पड़ता है. Once upon a time, the de facto ruler, the most powerful man in Iraq, Saddam Hussein, they just dethroned. Issue क्या है? No. Anything matter to USA? No. Once again, Libya, Muammar Gaddafi, it's just gone. Again, Syria, if we talk about an terrorist organization, ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, it's just gone. You see, Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS leader, dead after US raid in Syria. Once again, we all know that how they killed Osama bin Laden. So, US की एक फितरत रही है. US जब भी किसी लीडर के पीछे, और आम आदमी के पीछे नहीं पड़ते, ये लोग लीडर के पीछे पड़ते हैं. और जब पड़ते हैं, they actually gone. And this time, Nancy Pelosi just uttered the word. And it's not just the utterance of the words, but it is the direct threat. और ऐसे भी नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे और निकल गए मुंह से, या फिर ट्वीट कर दिया. नहीं, a proper legal press conference, and in that press conference he said that Jinping, you'll be gone. To understand this, you have to understand what is US interest in Tibet. You have to understand that why India is, hosting a dinner for US lawmaker, why they are in India. So अपने को समझना पड़ेगा तिबेट क्या है, चाइना क्या है. I'll take you on a roller coaster ride of importance of China, the evolution of China. Then once again we'll move to the Tibet, और उसके बाद ये सारा सीन होगा. But here you would see another statement that if US can kill Bin Laden, why can't we carry out special operation abroad too? And here once again we have Narendra Modi and the Canadian Prime Minister. What is happening between Justin Trudeau? What exactly is India saying by stating this fact? Once again, it's the allegation. So, अपने को कोई तीर नहीं लेना है. It's just the allegation from the Canadian government. क्या हुआ है, कैसे करना है. It's just our call. बस अपने को करना है. But इस सब के बीच में, if Dalai Lama, and we can see this such poster, भारत में 50 वर्ष पूरे होने पर बहिष्कृत, the 50 years in exile Tibetan experience, they are thanking India. And why they are thanking India? What is the exile experience? What is happening in the world? I welcome you all to the special session of international relation. My name is Harsh Gadvi, and I have been said that I need to address this, but with a quick revision, just to give you the overview. अगर we happen to meet in real life, real time, in the lecture,
सो अपन इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डील करेंगे. बट आई टेल यू what is happening here. There is a theory. If we talk about political science and international relation, it's a great scoring subject in UPSC, and I have scored nearly quite well. I was amongst the top 3 when it comes to PSIR scoring. But उसमें एक theory है, the theory of polarization. If we talk about pole, क्या है? The power of polarization. If we talk about the power, we are stating what? We are stating the superpowers. If we talk about the superpower, who actually are the superpower right now, you would always consider USA. Now USA wants to hold this power, and there comes the first point of this theory is unipolar. Unipolar मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही पावर हो सकता है, दैट इज अस, दैट इज यूएसए. बस हम अपने आप को ही मानेंगे एंड वी आर द सुपर पावर. बट देन देर इज द नेक्स्ट थियरी इज बाइपोलराइजेशन. उसमें रशिया सेज यूएसए इज डेफिनेटली पावरफुल, बट वी आर ऑल्सो पावरफुल, एंड चाइना इज अंडर ऑल्सो द सेम इंप्रेशन दैट वी ऑल्सो फॉलो दिस, दैट देयर कुड बी द बाइपोलर. ये दुनिया एक नहीं हो सकती, लेकिन इस दुनिया में 2 पोल हो सकते हैं, वैसे ही 2 पावर हो सकते हैं, और दोनों के दोनों सुपर पावर हो सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट यूएसए रशिया, डेफिनेटली देयर इज द गेम ऑफ द कोल्ड वॉर. क्या है जानेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया सेज मल्टी polarization, that we believe everyone could be a superpower. It's just the matter of time that how we can get that position quickly. So if we talk about India, when we are part of the BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa, we do believe that cooperation happens. We do believe that simultaneously lot of people can be a superpower. एक से ज़्यादा superpower हो सकते हैं वर्ल्ड में. So this is the theory. US follows this theory. So whenever they feel that there is something wrong in the world, they just want to jump in. US हमेशा से आएगा. They are not interested in Tibet. They are not certainly interested in Afghanistan or Syria, what is happening in Libya, or for that matter what is happening in Iraq. But under the name of saving up the democracy, under the name of humanity, they'll always come in the matter. Because of that theory, US always wants to be the superpower. और वो कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे जब अगर दुश्मन का दुश्मन वो मेरा दोस्त. It's just the enemy of my enemy should be my friend. And Tibet is the great enemy, the greatest enemy of China. So what is happening between China and Tibet? See, if we talk about China, this is China, the ancient China, Han Empire, और उसके बाजू में आपको मिलेगा तिबेटियन, उसके बाजू में साउथ एशिया मिलेगा. वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द चाइनीज हिस्ट्री, बट साइमल्टेनियसली ये टाइम तब है जब यहाँ पे चालुक्यास है, यहाँ पे पाल्लवास है, और एक अच्छा तिबेटियन एम्पायर है, द बिगर वन, बड़ा. एंड हियर वी हैव द तंग डायनेस्टी. लेकिन दिस इज द थिंग विच जिनपिंग सेड in 2021, that we have never bullied, oppressed or subjugated the people of any other country, so you don't have any right. This picture suggests what is happening in the world. It says the century of humiliation. The century of humiliation means what? When you get to see this news, Z is fixated on ending China's century of humiliation. What is that humiliation? That humiliation started on since this. We talk about 1839, it just got started, and here comes the Indian interest. The East India Company को चाहिए क्या? Basically it's a company, वो business कर रही है, इंडिया में काफ़ी अच्छा business कर रही है. Now they are focusing, they are spreading up their wings to the China, because China at that time also very economic power, economic goods भी है उनके पास, and they are very good, powerful in terms of the transaction, the dealing. But हुआ क्या है यहाँ पे? चाइना इज अ कंट्री विच डजंट डील इन गोल्ड, उनको सिल्वर चाहिए, और ब्रिटिशर को उसको सिल्वर देने के लिए एवरी टाइम दे हैव टू गो टू द स्पेन.
वो स्पेन से सिल्वर लेंगे, फिर चाइना को देंगे, एंड दैट सेव्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि मैं व्यापार करूं, मैं आगे बढ़ूं, और चाइना बीइंग अ ग्रेट जियोग्राफिकल एरिया विद लॉट ऑफ पीपल, वहां पे क्या है, वहां पे धंधा है. और आज भी when we talk about Syria, when we talk about Israel, Palestine, when we talk about Russia, Ukraine, US is just saving up their interest, the economic interest. Economic interest में क्या होता है? The major biggest sector of the US, because under the scheme of economy, you do know that there is the concept of capitalization. Capitalist economy वो है everything produced by the market, एंड मार्केट डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मार्केट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस. अब सब बाजार कर रहा है तो बाजार करेगा क्या? बाजार ढूंढेगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, द बिगेस्ट सेक्टर आर फार्मा, द बिगेस्ट सेक्टर आर वेपन्स. सो जब कॉन्फ्लिक्ट हो, इट्स द यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट कि वहां पे मुझे आना है, और आके मुझे क्या करना है? मुझे मार्केट करना है. द सेम वे few years ago, East India Company, Britisher did the same thing, and they wanted to establish a proper facility, they wanted to establish a proper business channel in the land of China. But यहाँ पे स्यापा क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चाइना बीइंग द एरोगेंट वन, पहले से उसने बोला मेरे पास सब है, आई डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट गेट लॉस. एंड दैट वाज द टाइम we were trying hard to find a product जो चाइना के पास नहीं हो. And guess what? We just got ourselves a product that is opium. Opium के सबसे बेस्ट है. लोगों के पास जाओ, नशे करवाओ, लोगों को बोलो मजे करो, ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं है. एंड दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैविंग अ ग्रेट पावर. पाकिस्तान, इंडिया एंड certain part of Afghanistan. And what do we call the Golden Crescent? If we talk about the Golden Crescent, Golden Triangle, these are the best source. ड्रग्स पूरा वर्ल्ड में कहां से चल रहा है? यहां से चल रहा है. एंड दैट इज अनदर रीजन कि यूएस ट्राइड हार्ड टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ अफगानिस्तान. वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. दैट इज अनदर स्टोरी. बट यू सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट देयर सेल्फ इनटू द वॉर. और वो वॉर करके किया क्या? दे जस्ट वॉन द वॉर. एंड हियर हांगकांग, द आइलैंड ऑफ हांगकांग, व्हेन वी से दैट कहीं ना कहीं हांगकांग इज ऑन द लीज to the British by the Chinese, this was the time. The first opium war was that first war. उसके बाद चाइना क्या होता है? चाइना being a very powerful geographical area, but continuously चाइना को दबाया जाता है. And this, the forces of 8 nations, it is called the 8 nation alliance. तो क्या यूपीएससी में ये पूछा भी गया है? 8 nation alliance were specifically formed to counter the Boxers, the Boxer rebellion. Boxer क्या होते हैं? In China we see lot of martial art, lot of people who are performing the physical activity. In that there was a rebellion, the Boxer rebellion. उसको दबाने के लिए they have made this. और यहाँ पे you would see the British Empire. These are the countries, but you see the British Empire. But उस British Empire में the symbol of the British Empire is a Sikh regiment. और आज भी उनके पास है. But what happened exactly in China? After that, they just lost their self to the British. और ब्रिटिश को हारने के बाद constant problem किसको हो रहे? The thing is called Qing dynasty. Qing dynasty was a very powerful. लेकिन इस सब के बीच में तिब्बत क्या है? तिब्बत वो है कि तिब्बत अपने आप को बड़ा कर रहा है, बट तिब्बत बीइंग एन ऑटोनोमस स्टेट, कि मैं अपने आप से ही पूरा ये मैं ही चलाऊंगा. द सेम वे जम्मू कश्मीर यूज्ड टू हैव द स्पेशल स्टेटस इन इंडिया. तो जम्मू कश्मीर के पास भी थोड़े बहुत पावर थे, अभी वो नहीं है. अभी क्यों नहीं है, क्या नहीं है, दैट इज द डिस्कशन ऑफ पॉलिटी. वो अपन जब मिलेंगे तब करेंगे. बट यू सी, ऑटोनॉमस स्टेट गिव्स दैट फ्रीडम टू फॉर्म द लॉ, टू एक्ट अपॉन द लॉ, टू इम्प्लीमेंट द लॉ. और अपने को करना क्या है, वो अपन ही चलाएंगे. सो तिब्बत यूज्ड टू बी एन ऑटोनॉमस. कब से? In between that time, the war happened between Sino-French war. The Chinese and the French, again, they just lost their self Vietnam. और वियतनाम उसके बाद जाता है, उसके बाद Sino-Japanese war. Once again, they lost their self a great land. और Qing dynasty जो है, वो step by step, because of the foreign territories, because of the foreigners, they just got suppressed. And after
the interest of the foreigners, they were just trying to find the Britisher, the French and the Japanese, they were just trying to get their interest कि हमको चाइना से क्या मिल रहा है. So if we talk about the exploitation, इंडिया के सामने चाइना का एक्सप्लॉयटेशन बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा सालों से चला आ रहा है. इंडिया यूज्ड टू बी अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, सो इज द चाइना. बट चाइना के साथ ये हुआ है एंड इट राइट नाउ इट एग्जैक्टली शोज इन देयर फॉरेन पॉलिसी. क्या है फॉरेन पॉलिसी, विल डिस्कस दैट इन द लेटर सेशन. बट इन सब में चिंग डायनेस्टी जब नहीं रही है, वहां पे एक बंदे का जन्म होता है, अ ग्रेट लीडर जो फॉर्म्ड अ पार्टी एंड देन वो राजाशाही वाला सिस्टम ही खत्म. नाउ वी आर गोना रूल द कंट्री इन अ वेरी डेमोक्रेटिक वे, in a very selected manner. We have a political party, we discuss things, we sort out things within us. And you see yourself a great man forming a country, the country called Republic of China, which is not the present day China. Republic of China ये form करता है and in the 1912 they set on the thing. But 1912 में और भी एक चीज हुई है जो तिब्बत में हुई है. एंड इफ यू टॉक अबाउट तिब्बत, क्या है तिब्बत? दिस इज द मंगोलियन एम्पायर ऑन देयर ग्रेट टाइम. मंगोलियन एम्पायर इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत, यू विल सी दिस ईयर्स 1221, 1220, 1240 के आसपास मंगोलियन एम्पायर यूज्ड टू हैव द कंट्रोल ओवर तिब्बत. ये तिब्बत है, तिब्बत के पास कंट्रोल था. बट यू सी मिस्टर खान इज रूलिंग द तिब्बत बट एज एन ऑटोनॉमस अंडर द मंगोलियन. और मंगोलियन ने फिर तिब्बत को एकदम से इतना भाव क्यों दे दिया? बिकॉज देयर इज द एंट्री ऑफ बुद्धिज्म. एंड इफ वी से बुद्धिज्म घुसा कैसे, बुद्धिज्म तिब्बत में एकदम से कैसा? दिस वर द थिंग्स ऑलवेज आस्क्ड इन, इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट सर्विस कमीशन, बिहार के एग्जाम में ये पूछा गया है. यू सी सत सीता. इफ यू टॉक अबाउट बुद्धिज्म, what is there? और वो हो क्या रहा है? Santarakshit was a scholar, a philosopher, but basically an Indian. An Indian just spread Buddhism over the land of Tibet. और उसके बाद once again शाक्य पंडिता. शाक्य पंडिता जो मंगोलियन में, if you know the name चंगिस खान, चंगिस खान के बेटे को, गौदर खान को बुद्धिज्म बोलते हैं. बुद्धिज्म इज अ ग्रेट थिंग, यू शुड लर्न अबाउट बुद्धिज्म. और वो उस फिलोसॉफी में शाक्य पंडिता गॉट देयर सेल्फ द सक्सेस. और उसके बाद कहीं ना कहीं मंगोलियन तिब्बत को एक ऑटोनॉमस देते हैं अंडर द नेम ऑफ बुद्धिज्म कि ओके बुद्धिज्म है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, आप चलाओ, आप एक ऑटोनॉमस है. और साइड बाय साइड चाइना में उस टाइम आरओसी की गवर्नमेंट आती है. यू सी in that Qing dynasty, what is happening? Sino-Tibetan war, Sino-Tibetan treaty, if we talk about 1821, वहाँ पे हुआ क्या था? Tibet and China in the 800, they had the mutual agreement कि अपन अलग अलग रहेंगे, autonomous रहेंगे, will respect your culture, I am gonna respect your culture, we are not getting into each other. और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला और उसके बाद वो सब हुआ जो चाइना में हुआ. बट यू सी उसके बाद जब वहां पे बुद्धिज्म राइज कर रहा है तो कोई डिफैक्टो रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है, जस्ट द एथिस्ट, जस्ट द थिंग. यू सी अब पूरा मामला धर्म पे आ रहा है, रिलीजन. एंड व्हाट रिलीजन सेज दैट यू कैन यूनाइट योरसेल्फ एंड बुद्धिज्म हैज दैट पावर टू यूनाइट पीपल. और तिब्बत में कहीं ना कहीं बुद्धिज्म वाला सीन आ जाता है. अभी in the first thing, Nancy Pelosi happened to meet Dalai Lama. So Dalai Lama is not a person, but Dalai Lama rather is a position. और उस position में you see this man is the 14th Dalai Lama. और Dalai Lama होते कैसे हैं? When you see in the Buddhism, the scholars, the Tibetan Buddhism and Indian Buddhism is fairly a bit changed. But Tibetan Buddhism says कि जो भी अच्छे scholars है, rulers है, philosopher है, वो वापस जन्म लेते हैं और वापस जन्म लेते हैं तो वही शासक होने चाहिए. सो व्हेन
you are a kid being a Buddha in Tibet. So you have a great chance that if you are a scholar in Buddhism, you have a great chance that you could be the next ruler in Tibet. So this is a position and this is not a man. The man himself is the 14th Dalai Lama और वो करता क्या है, वो शासक है, वो शासन करेंगे. बट द थिंग इज चाइना में आरओसी की गवर्नमेंट एक अच्छे से स्टेबल से होके निकल रही है. मीनवाइल चाइना हैपन टू गेट अनदर लीडर. द लीडर हिमसेल्फ इज माओ जेडोंग. माओ जेडोंग इज अ वेरी पावरफुल लीडर. वो कहते क्या थे, वो कहते थे कि देयर शुड बी वन कंट्री, देयर शुड बी वन rule, there should be one religion, no prosperity, no division. I just want yourself the money, I just want you to have a great life. और वो great life होगी क्या, पैसा. पैसा कैसा आएगा, काम. So माओ जेडोंग ने जो चाइना में किया, चाइना में लोगों को मोटिवेट किया एंड लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं. एंड चाइना जस्ट गॉट देयर सेल्फ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो अर्लियर, if we talk about the French, if we talk about the British, if we talk about the Japanese, they just were interested in the economic interest. और इन्होंने पूरा चाइना जो एक्सप्लॉइट किया है. once again China got that success under the Mao Zedong, his leadership. और चाइना में you get a new China. That one is the ROC, this one is the PRC. ROC we call the Republic of China. तो ये ओरिजिनल जो चाइनीज कंपनी है कोमिंगतांग, और नाउ अंडर द लीडर ऑफ माओ जेडोंग व्हाट इज हैपनिंग इज ओरिजिनल चाइना जिसने बनाया वो आरओसी को वहां से निकाल दिया गया. राइट नाउ दे आर एट ताइवान और माओ जेडोंग एंड हिज पार्टी इज रूलिंग द चाइना और चाइना काफी अच्छे से आगे भी बढ़ रहा है. मीनवाइल इन सब में व्हाट इज हैपनिंग इन तिब्बत और माओ जेडोंग व्हाई ही गॉट दैट सक्सेस इन 1949. 1950s में ऐसा क्या हुआ था, आरओसी की गवर्नमेंट वाज अंडर द कांस्टेंट थिंग. इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड वॉर ने काफी लॉस किया. द सेम टाइम सीनो जापानीज वॉर, द चाइनीज जापानीज वर फाइटिंग एंड इट इज सेड दैट द फर्स्ट टाइम एशिया गॉट इनटू द फाइट इन द वर्ल्ड वॉर इज दिस वॉर. और जापान ने जो लॉस किया है आरओसी का, माओ जेडोंग गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड माओ जेडोंग जस्ट हैपेंड टू जंप इनटू द थिंग कॉल्ड द रूलिंग ऑफ चाइना. व्हाट इज हैपनिंग, अ मैन फ्रॉम इंडिया राइट नाउ इज अ सेंट इन बुद्ध, अ सेंट इन तिब्बत. तो तिब्बत को ना ज़्यादा भरोसा अपने पे नहीं है, तिब्बत को ज़्यादा भरोसा बुद्धिज़्म पे है और बुद्धिज़्म इंडिया से जुड़ा हुआ है. और इन बीच में तिब्बत के साथ क्या होता है, द सिमला कन्वेंशन, ये भी एग्जाम में आया था. द सिमला कन्वेंशन बिटवीन द ब्रिटिश, द तिब्बत एंड द चाइनीज़. बट यू सी सिमला में जो भी हुआ है आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. एंड यू सी द सिग्नेटरीज, साइन किया है तिब्बत ने और यूनाइटेड किंगडम ने. चाइना सेज नो, चाइना सेज नो, हम नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे, क्या है डिटेल में नेक्स्ट सेशन आई एम गोना टीच यू व्हाट इज हैपनिंग देयर. बट मीनवाइल अब गेम समझो कि अभी तक ऑटोनॉमस थे मंगोलियन टाइम से 1200 से 1300 1400. उसके बाद जब चिंग डायनेस्टी है तब भी तिब्बत उनके पास है बट एज एन ऑटोनॉमस स्टेट कि ठीक है आपका कल्चर अलग, आपके लोग अलग, आपका प्लेटो अलग, वो फ्लैट लैंड पे आप अलग से रहो, हम यहाँ पे अलग से रह रहे हो, बट यू आर अंडर माई रूलिंग. यहाँ पे ऑटोनॉमस स्टेट बढ़ रहा है बट साथ ही साथ में द एंट्री ऑफ बुद्धिज्म उस स्टेट को बुद्धिस्ट बना रहा है. और बुद्धिस्ट जब बना रहा है तब साथ में आरओसी, एंड आरओसी सेज हु इज द रूलर, दलाई लामा. दलाई लामा इज अ पोजीशन, जैसे कि इंडिया में एक पोजीशन मेरे पास है, द पोजीशन इज पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वेरी पावरफुल, प्रेसिडेंट, वेरी पावरफुल. लाइकवाइज आई हैव अ पोजीशन विच इज सेइंग दलाई लामा इज द टॉप वन. और उसके बाद कौन है, उसके बाद पेंचिंग लामा है. और पेंचिंग लामा कौन है, पेंचिंग लामा अंडर इफ दलाई लामा हैपन टू लीव द कंट्री, एक्साइल द कंट्री, तो द नेक्स्ट रूलिंग मैन शुड बी पेंचिंग लामा.
पेंचिंग लामा क्या करेंगे उस टाइम पे? 10th पेंचिंग लामा, इफ यू टॉक अबाउट 10th पेंचिंग लामा, 10th पेंचिंग लामा चाइना को बहुत सपोर्ट करते थे। और वो क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि 10th पेंचिंग लामा वॉज फ्रॉम द आरओसी। आरओसी ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया था। ही वॉज अंडर द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पार्टी आरओसी। तो आरओसी के सपोर्ट से वहां पे गए। और आरओसी करना क्या चाहती थी? आरओसी कहती थी 1912 1915 में कि बुद्धिज्म है, इट्स अ गुड थिंग, दलाई लामा शासक है, इट्स अ गुड थिंग, बट अपना कोई होना चाहिए। एंड देयर कम्स दिस मैन, द 12 year 14-year old boy, and now he is the ruling man, the ruling party in Tibet. What is happening in China? China is using people as a puppet. कि मैं उन सब puppet को use करूंगा और मैं क्या करूंगा? I'll just get myself the whole Tibet. क्यों है Tibet? Geography में you'll get lot of idea that Tibet has hell lot of resource. First of all, the land itself, it's a big plateau. Along with that, it is a strategic advancement as well. So दलाई लामा वहाँ पे अच्छे से रह रहे। दलाई लामा को माओ जेडोंग आते हैं और माओ जेडोंग बोलते हैं कि यू सी द 10th पेंचिंग लामा, एंड 10th पेंचिंग लामा इज सेइंग कि तिब्बत को चाइना के साथ जुड़ जाना चाहिए। दलाई लामा सेज नहीं। माओ जेडोंग सेज आप लोग इंडिपेंडेंट थे ही कब? मंगोलियन टाइम से अंडर द ऑटोनॉमस, बट रहते हो हमारे साथ ही। आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी अ मूवी। एक थिएटर परफॉर्मेंस देखते हैं अपन, थिएटर परफॉर्मेंस, और अपने वॉरियर को लेके मत आना। नो सोल्जर्स, ओनली यू। और यहां पे द थिंग्स हैपेंड। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट से 17 पॉइंट्स। चाइना से दलाई लामा के कहने पे एक चीज जाती है, द डेलीगेशन। और डेलीगेशन करता क्या है? डेलीगेशन अपने आप को अंडर अ प्रेशर फील करता है, एंड दे वर लाइक कि नहीं, यू हैव टू साइन दिस। माओ जेडोंग सेज यू हैव टू साइन दिस, यू हैव टू साइन दिस। और वो साइन होता किस चीज पे है? वो साइन होता है अंडर द एग्रीमेंट ऑफ 17 पॉइंट। 17 पॉइंट का पहला ही पॉइंट कहता है कि तिब्बत, द होल एरिया शुड बी अंडर चाइनीज गवर्नमेंट। लेकिन आगे के पॉइंट ये कहते हैं कि ऑटोनॉमस तुमको दे देंगे, बुद्धिज्म को हम ये करेंगे, हम आगे उसको फॉलो करेंगे, हम उस तिब्बत को डेवलप करेंगे। बट व्हेन यू सी एट दैट टाइम दलाई लामा हैपन टू मीट माओ जेडोंग। दलाई लामा पहली बार जाते हैं ये साइन होने के बाद, और माओ जेडोंग सेज यू सी द डेवलपमेंट इन चाइना। आपको चाहिए तिब्बत ये डेवलपमेंट महसूस करे। You want me to build great things in Tibet? And Dalai Lama under the influence, because that man, the man himself is also 15-17. वो 15-17 साल का लड़का कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। और Mao Zedong says okay, you have it, you name it, you have it. Under the 17 point, China पहला ही पॉइंट अपने लिए यूज करता है, that is Tibet is under China, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि चाइना की एक फिलोसॉफी है, माओ जेडोंग की एक फिलोसॉफी है। द फिलोसॉफी सेज वन नेशन, वन पीपल, वन रिलीजन। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यूगर मुस्लिम्स चाइना में, जिनजियांग, दिस इज द मॉस्क ओवरनाइटली कन्वर्टेड इनटू सिनेगॉग। यू सी, चाइना किसी धर्म को मानता ही नहीं है, चाइना रहने ही नहीं देगा, ओवरली कन्वर्ट कर देगा कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और अगर नहीं करना चाहते तो उसको टॉयलेट बना देगा। यू सी, चाइना डिमोलिश मॉस्क एंड बिल्ड्स अ पब्लिक टॉयलेट इन इट्स प्लेस। सो दिस इज चाइना। तो तिब्बत में दलाई लामा को ये दिक्कत हुई कि अगर ये लोग यहाँ पे घुसे और बुद्धिज्म खत्म किया, सो दलाई लामा इज अ पोजीशन जो बुद्धिज्म देता है उसको, और तिब्बत एज एन ऑटोनॉमस रूल करता है अंडर द नेम ऑफ बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म चला गया तो क्या, दैट गाय जस्ट फ्लोन, क्योंकि उसको पकड़ना चाहते हैं, उसके पैलेस के आसपास लोग आ जाते हैं। एज एन अंडर कवर दैट गाय जस्ट वैनिश तिब्बत। और तिब्बत में उसको पकड़ने के लिए चाइनीज आर्मी टुक अ लार्ज स्टेप, बट दैट मैन रिक्वेस्टेड इंडिया, एंड एट दैट टाइम CIA, द सीक्रेट सर्विस ऑफ USA, हेल्प दलाई लामा
दलाई लामा को हेल्प करके होता क्या है, दलाई लामा कहीं ना कहीं इंडिया में आ जाते हैं, और ये इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहा है, द पॉलिसी सेज IR आइडियलिज्म, कि मैं किस में मानता हूं, मैं मानता हूं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मीन्स एवरीबडी शुड बी अ सुपर पावर, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। व्हेन आई से USA, एट दैट टाइम यूनिपोलर पावर में ब्रिटिश था, और जब ब्रिटिश ने फर्स्ट ओपियम वॉर किया था, तो वो ओपियम वॉर दैट वाज अंडर द रूसो इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द रूसोफोबिया, कि रशिया से मेरे को डर लग रहा है, और रशिया जैसे जैसे, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो चाइना एंड रशिया वाज अ क्लोज अलाई, दिस टाइम ऑल्सो चाइना एंड रशिया इज अ क्लोज अलाई, और रशिया जैसे चाइना पे बढ़ेगा, वो रशिया हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया पे भी आ जाए, एंड दैट वाज द थिंग, कि चाइना और ब्रिटिश कहीं ना कहीं दे वर वेरी कीन ऑन द तिबेट इश्यू, और आज इंडिया कहता है कि अंडर द आइडियलिज्म मैं चाहता हूं कि एवरीबडी शुड बी अ सुपर पावर, तो इंडिया ने एक मीडियम स्टेट लिया। इंडिया सेज ओके आई वेलकम यू हियर, बट यू कैन नॉट बी माई सिटीजन, यू कैन नॉट बी माई सिटीजन, आपको क्या रहना है, आपको एज अ रेफ्यूजी रहना है, मैं आपको शरण दे दूंगा, हेल्प नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज द रीजन दे स्टिल मेंशन एक्साइल, दे स्टिल मेंशन थैंक यू इंडिया, बट ये एज अ सिटीजन हमको शरण देने के लिए थैंक यू, हम आज भी सिटीजन नहीं, और वो क्यों बनेंगे, क्योंकि दे ऑल्सो डिमांड द सेम लैंड तिबेट, सो दे कॉल देम सेल्फ द टिबेटियन। और उसके बाद यहां पे क्या इश्यू हो रहा है, एज आई सेड आरओसी की एक पार्टी थी 1912 रूलिंग द चाइना, माओ जिदोंग आते हैं, माओ जिदोंग सबको खदेड़ देते हैं, और माओ जिदोंग ताइवान में उन सबको बिठा देते हैं, और राइट नाउ चाइना इज सेइंग ताइवान इज नॉट अ कंट्री, बट ताइवान इज जस्ट अ स्टेट ऑफ चाइना, and what the world is saying, Taiwan is another country, China is a different country. These are not different geographical location, but these are just different political party, political agenda, political ideology of two party. One is called the ROC, the Taiwan one is called the PRC, the actual modern China right now, Xinjiang. You see, China objects after Taiwan congratulate Modi, who says thank you. आज तक इंडिया कभी भी ताइवान के इश्यू में नहीं आती है, क्यों, क्योंकि वी हैव द एग्रीमेंट विद चाइना कि ओके ताइवान आपका है, बट नरेंद्र मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम won the election third time, and for the first time he replied when Taiwan says congratulations, Narendra Modi says thank you, और उनके थैंक यू बोलने पे पूरा ताइवान कहता है कि नाउ China should be worried because Modi is supporting us, and this is once again a news. China objects after Taiwan congratulates Modi, who says thank you, and China always says there is no thing called president of Taiwan. Taiwan is just a state. The same time you see Putin says Russia and North Korea will help each other if attack taking ties to the new level. यहाँ पे हो क्या रहा है? Again the concept of international relation bipolar. Russia wants to be a superpower, USA is continue holding the power of superpower, और इन superpower में होगा क्या, US कहता है कि नहीं मैं होने नहीं दूंगा। You see now I've got myself the cutout, यहाँ पे है कौन सी डेट, June 19th, Russia, Putin says Russia and North Korea will help each other if attacked, and the biggest defense tie just happened here on the first slide itself. Nancy Pelosi says you will be gone, Jinping. Why? Because China is a great alliance of Russia as well, and if we talk about the date we see ourselves is 19th June here, 19th June, and once again if we see Russia and North Korea deal, that deal is off on that day of the 19th June. It has a great impact on June 19th, on the same day, June 19th, Modi, the Buddhism, the Tibet, the China, Narendra Modi says, I am very keen follower of Nalanda University, and India. Prime Minister Narendra Modi visited the ruins of Nalanda Mahavira in Nalanda district, Bihar
on June 19th, and Prime Minister on June 19th inaugurated the new campus of Nalanda University. What is happening? India is now following the principle of Buddhism. India is wanting us on the same day when Nancy Pelosi says, no, China, you will be gone, and on the same day, Putin says, North Korea and Russia will be having the biggest defense deal. This is the concept of polarization. Unipolar, bipolar and multipolar. And this is the thing called geopolitics. But geopolitics में तीन चीज़ समझनी पड़ती है. एक करंट अफेयर के पीछे होती है एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड, और उसके साथ होता है द आइडियोलॉजी, द एंगल. बट यूपीएससी में नेक्स्ट टाइम वी गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन द मेंस क्वेश्चन, क्योंकि every year they ask, or this I am talking about the GS, not the PSIR optional, the GS में वो लोग पूछते हैं 55 marks, 75 marks. 75 marks is a great weightage. To write up a great answer, you have to go through the history, you have to go through the current affair, you have to understand the IR policy and the ideology of the countries as well. कि ये सब एक ही दिन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है. If you don't know, you don't need to know, because I am here and I'll explain every bit of this under the PSIR and international relation current affair. My name is Harsh Garvi and I thank you all. If you like my effort, if you like the video, give me a thumbs up. Bye bye, see ya, have a nice day guys.